Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to cover very important defense current affairs, and whatever points we are going to cover, these all points are 5-star points, very important points. These are very prone to be asked in your competitive examinations, right? जो भी points हम cover करेंगे ये सभी points बहुत ही important होंगे. हम केवल very important points को cover करेंगे जो कि 5-star points होंगे, जिनसे कि आपके examinations में questions पूछे जाने के chances बहुत ही ज़्यादा हैं. आपको as it is direct questions देखने को मिलेंगे. ओके, दोज हु आर फॉलोइंग दिस सीरीज ऑफ डिफेंस करंट अफेयर्स, दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सीरीज वेरी वेल. ओके, एंड दोज हु हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द रिसेंट एफकेट एग्जामिनेशन, सो दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सीरीज. ओके, बिकॉज देयर वर मेनी क्वेश्चंस व्हिच वर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम दैट सीरीज, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग, फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोज ऑन सच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड एक्टिव ऑल notifications by clicking on bell icon, and join telegram also because I keep on providing quiz on very important topics which are very important for your competitive examinations. And you may have seen in your recent FCAT examination there were many questions which were directly asked from telegram quiz questions. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. Let's see the first question. First question is, युद्ध अभ्यास is a joint military exercise conducted between which two countries? Okay, युद्ध अभ्यास एक joint military exercise है. So question is being asked that between which two countries this exercise is conducted, right? So युद्ध अभ्यास is conducted between the armies of India and the USA. Okay, and this is very important exercise. All exercises which are conducted between India and the USA, these all exercises are very important, like युद्ध अभ्यास, Malabar, and some many other exercises. We will cover some of them in this class also. And the latest version of this exercise, which was conducted from 15th of October to 29th of October 2021, it was conducted in Alaska of the USA, right? The venue of this exercise was Alaska. I keep on telling you that there are 3-4 points related to a joint military exercise which are very important. First one is the name of exercise. Second one is between which two countries or between many other countries this exercise is conducted. He can ask you the name of countries. And third one is its edition, and fourth one is its venue. So these all points are very important related to a joint military exercise, right? You must know it. और आपने देखा भी होगा अभी जो आपके रिसेंट एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें देखो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे. ओके, जो कि हमने कवर भी किए थे, राइट? एंड द मेन मोटिव ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग इंटरऑपरेबिलिटी, जिससे कि आर्मीज ऑफ बोथ द कंट्रीज कैन इजीली अंडरस्टैंड ईच अदर्स टैक्टिक्स, प्लानिंग एंड वेपन्स एंड हाउ दे वर्क. सो इफ दे नीड टू कम टुगेदर इन फ्यूचर, सो दे कैन परफॉर्म इफेक्टिवली, right? They can counter the threat effectively. Okay, so this exercise is very important. What is the name of this exercise? It is Yuddh Abhyas, and it is conducted between India and the USA, right? Let's move on. Question number 2 is, which edition of Ajaya Warrior joint military exercise was conducted in October 2021? Ajaya Warrior is also a very important joint military exercise, and it is conducted between the armies of India and UK, right? So this too is very important, and in 2021 it was conducted in October 2021 in Chobatiya of Uttarakhand. Okay, so the venue of this exercise was Chobatiya, which is located in Uttarakhand, and it was its 6th edition, right? अगेन देखो, जो भी कोई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका जो मेन पर्पस क्या होता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक साथ कराने का पर्पस ये होता है जिससे कि दोनों ही कंट्रीज़ की फोर्सेस आपस में मिल सकें. ओके, और एक दूसरे के टैक्टिक्स को, जो भी उनकी टेक्निक्स हैं, उनके वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के इन सभी चीज़ों को आसानी से समझ सकें. और जब भी ज़रूरत पड़े, कोई भी दिक्कत हो सकती है, कोई भी थ्रेट हो सकता है, लाइक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन हो सकते हैं या और भी कुछ हो सकता है. ओके, तो उसमें दोनों कंट्रीज़ एक साथ मिलकर इफेक्टिवली काम कर सकें. ऐसा नहीं है कि भाई हमको उनकी टेक्नोलॉजीज पता नहीं है, उनको हमारी नहीं पता है. ओके, और कभी हमको एक साथ लड़ना पड़ गया तो फिर हम कैसे करेंगे? सो दैट इज द मेन मोटिव ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, राइट? और देखो, इससे दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशन भी बनते हैं. सो इट वर्क्स एज रिलेशन बिल्डिंग. सो अजया वॉरियर इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड यूके. ओके, very इंपॉर्टेंट, एंड इट इज वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. फर्स्ट वन विच वी हैव कवर्ड recently, which was युद्ध अभ्यास, it was also very important, and whatever points we are going to cover, these all points are very important, so don't take any point lightly. Okay, let's move on. Another very important joint military exercise. Question number 3 is, what was the venue of second phase of Malabar exercise 2021? This exercise is very important. Okay,
and this exercise is conducted to counter mainly China. Okay, चाइना को काउंटर करने के लिए हम लोग इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। जिन जिन कंट्रीज़ को चाइना के एग्रेशन से, जो कि साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में चाइना का एग्रेशन है, जिन भी कंट्रीज़ को उससे प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है, वो कंट्रीज़ एक साथ मिलके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करती हैं और इसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ये एक जॉइंट नेवल, ये एक मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। एंड इन दिस एक्सरसाइज 4 कंट्रीज टेक पार्टिसिपेशन एंड व्हाट ऑल आर दीज कंट्रीज? दीज आर India, Australia, Japan and the USA. Okay, and it is called Quad. And in your examinations, questions on that point, like the name of countries and number of countries, it has been asked many times in your competitive examinations, various examinations like SSC defense examinations, right? And I have also asked a question on that exercise in the form of quizzes on YouTube in community tab and on Telegram, and this time question was asked on that particular exercise, right? So its second phase, which was conducted in October 2021 from 12th of October to 15th of October, it was conducted in Bay of Bengal, right? So what is the venue of this exercise? It is Bay of Bengal, and it is conducted between navies of India, Australia, Japan and the USA. Okay, and this is a multilateral maritime exercise. Very very important exercise है ये. This is a 5-star exercise. Okay, और देखो अभी हम देख रहे हैं ये अक्टूबर मंथ के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं, ये हम रबिश कवर नहीं कर रहे हैं। इसमें एक भी पॉइंट फालतू का नहीं है, सारे के सारे बहुत सोच समझ के ये उठाए गए हैं। ये आपके हाईलाइट हैं। ओके, 5-स्टार पॉइंट्स हैं सारे। ऐसे ही हमने आपके अदर मंथ्स के जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं उनको कवर किया हुआ है, लाइक सितंबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 2022, राइट? तो आप इनको जरूर देख लेना। एग्जाम से आपके पहले के जो भी 7-8 महीने के डिफेंस करंट अफेयर्स हैं, यू मस्ट नीड टू गो थ्रू देम बिकॉज यू विल सी डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज वीडियोस। ओके, एंड दोज हु आर फॉलोइंग इट दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सीरीज वेरी वेल, राइट? और देखो आपके जीके के इसी टाइप के जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने निमोनिक टेक्निक से आपको याद कराया है। जिन लोगों ने देखा उनको पता है, और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे आपको आपके एग्जामिनेशन में, तो आप उनको भी एक बार तैयार कर लेना। और अपकमिंग क्लासेस में आई विल कवर मोर टॉपिक्स ऐसे ही जैसे ही हमने निमोनिक टेक्निक से देखा था, तो उससे आपको याद करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी एंड यू कैन कॉन्क्वर एनी डिफिकल्ट टॉपिक विद इन ए फ्यू मिनट्स, राइट? आप बड़े आसानी से उस टॉपिक पर फतह हासिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ निमोनिक टेक्निक। तो आपकी आगे आने वाली कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो मिस नहीं होने चाहिए, उसके लिए आप ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना जिससे कि आपको सभी के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, लेट्स मूव ऑन। Question number 4 is which edition of Mitra Shakti joint military exercise was conducted in October 2021? As I already told you that we are covering very very important defense current affairs of October month. ठीक है, ये सारे पूरे महीने के जो भी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं ये हम वो सभी कवर कर रहे हैं। और देखो इस टाइम में ज़्यादातर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ही कंडक्ट कराई गई थी, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस पर ही हैं और आपके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, राइट? सो मित्र शक्ति इज ए जॉइंट मिलिट्री exercise which is conducted between the armies of India and Sri Lanka, and this time in October 2021 it was conducted at Combat Training School of Ampara in Sri Lanka. Okay, and it was conducted from 4th of October to 15th of October and it was its 8th edition, right? देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि किन कंट्रीज के बीच में और क्या उसका नाम है और वेन्यू। और एडिशन तो कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन एडिशन भी पूछ लिया जाता है जब एग्जाम वेरियस शिफ्ट्स में होता है, जब उसके काफ़ी सारे शिफ्ट्स होते हैं, लाइक एसएससी के एग्जाम हो गए, काफ़ी शिफ्ट्स में कराए जाते हैं, तो उनमें दे कैन आस्क यू एडिशन ऑल्सो। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पॉइंट, वी शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ओनली 4 points are important related to any joint military exercise, right? So do you know this exercise? It was asked in your FCAT 1 2022 if you remember your questions. Okay, Mitra Shakti is a joint military exercise which is conducted between the armies of India and Sri Lanka, and it was its 8th edition and it was conducted from 4th of October to 15th of October 2021 and its venue was Combat Training School of Ampara in Sri Lanka. Okay, let's move on. Question number 5 is what was the venue of India-Japan maritime bilateral exercise, and the name of this exercise is JIMBEX 2021. How will we remember the name of this exercise? देखो ये जो ऐसे नाम होते हैं ना जो थोड़े ऐसे डिफिकल्ट से होते हैं कि भी हमको कैसे याद करें, ये शॉर्ट फॉर्म होती है उस एक्सरसाइज की। Now let's see how we will remember this. In this name, J stands for Japan, I stands for India, M stands for maritime and B stands for bilateral and EX means
exercise. Okay, so Japan India maritime bilateral exercise 2021. So now we can easily memorize it. Okay, so question is, what was the venue of this exercise which was conducted in October 2021? So this exercise was conducted in Arabian Sea from 6th of October to 8th of October 2021, and it was its 5th edition. Okay, and from Indian side, INS Kochi, INS Teg, and P-8I Pashedian aircraft, which is a surveillance aircraft, and Dornier aircraft, which is also a surveillance aircraft, and integrated helicopters and MiG-29 fighter aircraft took participation from Indian side in this maritime bilateral exercise which is conducted between India and Japan. Okay, so I hope you have got these all points. The name of exercise is Chimbax, and its edition was 5th, and its venue was Arabian Sea, and it is conducted between India and Japan, which we can remember very well from this name, Japan and India. ठीक है, यहाँ जो इसका नाम है, इससे हम इसको आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. Question number 6 is, in October 2021, India and UK conducted which maiden exercise? Maiden means पहली बार, जो पहली एक्सरसाइज हुई है. ओके, तो क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में अक्टूबर 2021 में इंडिया और यूके के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जो कि पहली एक्सरसाइज हुई है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट? सो द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कोंकण शक्ति. ओके, एंड दिस इज ए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज. ट्राई सर्विस मीन्स आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. सो दिस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन द आर्मी, नेवी एंड एयर force of both of the countries, India and UK, all together, right? So that's why this exercise becomes very very important, and he is asking that it was maiden exercise, right? So it was first exercise of that kind. Okay, जिसमें कि तीनों ही forces ने, दोनों ही countries की तीनों ही forces ने इसमें participate किया था. Okay, and it was conducted in 2 phases, right? First phase was conducted in Mumbai from 21st of October to 23rd of October, and its second phase was conducted from 24th of October to 27th of October 2021 एट कोंकण कोस्ट इन अरेबियन सी. कोंकण कोस्ट कहाँ पर आता है? ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में आता है, राइट? तो देखो ये मेडन एक्सरसाइज है, सो दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे तो जितने भी हम पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर 5 स्टार पॉइंट्स. ओके, और देखो हम केवल एक ही क्वेश्चन ही है, ये ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 6 है तो ये एक ही क्वेश्चन है. इन दिस क्वेश्चन वी आर कवरिंग मेनी क्वेश्चंस लाइक नेम ऑफ एक्सरसाइज एंड कंट्रीज एंड इट्स वेन्यू एंड इट्स एडिशन. ओके, ये सारी हम इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, सो प्लीज कंसीडर ऑल दीज पॉइंट्स केयरफुली. ठीक है, अपने माइंड में इनको सभी को सेव करते हुए चले जाना, और यदि एक बार में याद नहीं होते हैं तो फिर से आप इसको रिपीट कर लेना, फिर से रिवाइज कर लेना. ओके, रोक रोक के आप इसको देख लेना. और देखो यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, सो डू लाइक एंड शेयर इट. ओके, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो कि वेदर यू लाइक इट और नॉट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. Question number 7 is, OSINDEX 2021 is a joint naval exercise conducted between which 2 countries? ठीक है, देखो इसमें वही है, ये नाम आ गया, शॉर्ट फॉर्म में है. अब इसमें हम कैसे करेंगे? शॉर्ट फॉर्म से तो देखो कंट्रीज़ का नाम निकालना और भी आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है. इसमें देखो क्या है, AUS का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, और IND का मतलब है इंडिया, और EX का मतलब है एक्सरसाइज, और 2021 का मतलब हो गया द एडिशन ऑफ 2021. सो क्वेश्चन इज, बिटवीन विच कंट्रीज दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड? सो दिस इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया and Australia. Okay, this is a joint naval exercise, so this is conducted between the navies of India and Australia, and it was its 4th edition, and this time in October 2021 it was conducted in northern part of Australia, right? और देखो इसका मेन पर्पस क्या है? वही है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए हमको तैयार होना. मैरीटाइम सिक्योरिटी में जो भी हमको थ्रेट होंगे इंडिया में, इंडियन ओशियन में, या ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पर जो भी थ्रेट होंगे, मेनली तो इंडिया जो इंडियन ओशियन जो है जहाँ पर ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बन रहा है चाइना का, यहाँ पर ज़्यादा थ्रेट रहते हैं, तो इसको काउंटर करने के लिए हम लोग ये ज़्यादा करते हैं. ओके, सो द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज OSINDEX, एंड इट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. इट वॉज इट्स 4th edition, and this time in October 2021 it was conducted in northern part of Australia. Okay, I hope you have got it. Let's move on. Question number 8 is, DRDO has successfully tested expandable aerial target जिसका नाम है अभ्यास. Its name is अभ्यास. What is अभ्यास? Question is, what is अभ्यास? Okay, so let me explain it in simple language. अभ्यास क्या है? देखो, when we test fire our air defense systems like आकाश मिसाइल सिस्टम और अदर एयर डिफेंस सिस्टम, तो जब हम उसको टेस्ट फायर करते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम का क्या काम होता है कि जो एनिमी कंट्रीज़ की एनिमी मिसाइल आ रही हो, रॉकेट आ रहा हो, या कोई फाइटर एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट आ रहा हो उसको हिट करना है, वो एक मूवेबल टारगेट होता है एनिमी कंट्रीज की तरफ से, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसको हिट करते हैं, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम होता है, इट हिट्स इट एंड डिस्ट्रॉयज इट इन एयर, ओके, जिससे कि वो हवा में ही खत्म हो जाए। लेकिन अभी तो हम उसका जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, हम उसका क्या कर रहे हैं, टेस्ट फायर कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ वर्किंग इन ए प्रॉपर वे और नॉट। तो उसके लिए हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अब एनिमी का तो यहाँ पे कोई मिसाइल है नहीं, तो हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो हमारे पास ऐसा कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि एनिमी कंट्रीज की जो मिसाइल वगैरह होते हैं उसकी तरह मूव करता हो, ओके। ऐसा हमको एक डमी चाहिए, राइट। तो ये अभ्यास क्या है, ये एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट है, ओके। ये हाई स्पीड पर चलता है, ये देखो हीट की फुल फॉर्म क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट एरियल व्हीकल, ठीक है। ये बहुत ही तेज स्पीड पर चलता है, जैसे कि एनिमी कंट्रीज के जो भी फास्ट मूविंग मिसाइल्स वगैरह होंगे ऐसे ही ये मूव करेगा। और हम एक तरफ से इसको छोड़ेंगे, एक तरफ से इसको हम हवा में छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ से हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा उसकी हम मिसाइल को छोड़ेंगे, तो ये उसको जाके हिट करेगी। इफ इट हिट्स देन आवर टेस्ट इज सक्सेसफुल एंड इफ नॉट देन आवर टेस्ट इज नॉट सक्सेसफुल, ओके। सो व्हाट इज अभ्यास? सो आई होप you have got it what is Abhyas. Now let's see some important points related to it. It was tested from Integrated Testing Range Chandipur of Odisha and it was made by DRDO and ADE. This is indigenously developed. ठीक है, स्वदेशीकरण से ये बनाया हुआ है और ये एक तरीके से एरियल टारगेट बनाने के लिए उसका ऑब्जेक्ट का काम करता है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, राइट। सो आई होप यू हैव गॉट इट। लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच टाइप ऑफ मिसाइल इज अग्नि 5, यानी कि अग्नि 5 जो मिसाइल है ये किस टाइप की है, राइट। तो देखो अग्नि 5 मिसाइल इज ए न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ओके। दिस इज अ बैलिस्टिक मिसाइल एंड इट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड, राइट। न्यूक्लियर कैपेबल मीन्स इट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड। तो यदि हमको न्यूक्लियर हमला करना है सो वी कैन यूज दिस मिसाइल, ओके। इंटरकॉन्टिनेंटल मीन्स इट कैन हिट इट्स टारगेट इन अनदर कॉन्टिनेंट ऑल्सो, राइट। तो यानी कि ये लॉन्ग रेंज की एक मिसाइल है एंड व्हाट इज इट्स रेंज, इट इज अप टू 5000 किलोमीटर्स एंड इट हैज 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन, ओके। इसका 3 स्टेज का सॉलिड फ्यूल इंजन होगा, यानी कि इसमें सॉलिड फ्यूल हम इस्तेमाल करेंगे और उसमें भी 3 स्टेजेस होती हैं। देखो 3 स्टेजेस कैसे होती हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा, जब किसी मिसाइल को टेस्ट फायर किया जाता है तो पहले उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसका जो फ्यूल होता है वो इस्तेमाल होता है, फिर जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो फिर वो हट जाता है, वो उसकी पहली स्टेज होती है वो हट जाता है। फिर जो उसका सेकंड स्टेज होता है, जो सेकंड पार्ट होता है, फिर उसका जो इंजन होता है उसमें जो फ्यूल होता है वो इस्तेमाल होता है, फिर वो इस्तेमाल होता है जब तक वो खत्म होता है, फिर उसके खत्म होने के बाद में फिर वो हट जाता है, फिर जो रिमेनिंग होता है फिर वो इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ही 3 स्टेज इंजन है इसका और उसमें सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होगा, राइट। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जो जो स्टेज खत्म होती हुई चली जाती हैं वो अलग होती हुई चली जाती हैं और मिसाइल फिर हल्की और छोटी होती हुई चली जाती है, राइट। और देखो अभी हाल ही में अक्टूबर 2021 में इसका टेस्ट फायर किया गया था, विच वॉज टेस्टेड फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड्स ऑफ ओडिशा, ठीक है। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दोज हु हैव गॉन थ्रू एफकेट एग्जामिनेशन दे वुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस क्वेश्चन, इट वॉज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ओके। लेट्स मूव ऑन। Question number 10 is which indigenously developed ICGS has been commissioned to the Indian Coast Guard? ICGS means Indian Coast Guard ship. जैसे कि हम नेवी के लिए बोलते हैं ना Indian Naval Ship, in the same way we call ICGS for Coast Guard. Coast Guard के जो भी शिप होते हैं उसके लिए, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में कौन सा शिप अभी कमीशन हुआ है, राइट। सो इट इज ICGS सार्थक, इट्स नेम इज सार्थक, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक, ओके। यू शुड नो इट एंड इट इज बेस्ड ऑन पोरबंदर ऑफ गुजरात, ओके। एंड इट वाज कमीशनड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड हु इज मिस्टर के नटराजन, ओके। ये देखो आपको पता होना चाहिए, जैसे ही हमारे नेवी के चीफ होते हैं, आर्मी के चीफ होते हैं और एयरफोर्स के चीफ होते हैं, इन द सेम वे कोस्ट गार्ड में डायरेक्टर जनरल होता है, राइट। और ये कौन है, ये है मिस्टर के नटराजन। इन्होंने इसका शुभारंभ यानी कि इनॉग्रेशन इसका किया था और इसको इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया था, ओके। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है इट इज 26 नॉट, राइट। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर 2021। आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें से 99% जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी में से आएंगे, ठीक है। हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करे हैं, वैसे तो ये देखो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं बट वी हैव कवर्ड मेनी क्वेश्चंस अंडर वन क्वेश्चन, ओके। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको ये पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके। और देखो आपके लिए क्वेश्चन है कि युद्ध अभ्यास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये किन 2 कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, हमने इसी वीडियो में कवर किया है।
यदि आपने अच्छे से समझा है देन यू कैन इजीली आंसर दिस। आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। और ये है अक्टूबर की डिफेंस करंट अफेयर्स। बाकी जो अदर मंथ्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें जाना तो आपको ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सभी मंथ की अलग अलग इस तरीके से ये क्लासेस मिलेंगी। एक मंथ की एक ही क्लास है, उसमें जो भी 5 स्टार पॉइंट्स हैं ओनली वही कवर किए गए हैं, ओके। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उन्हीं से आते हैं। तो चलिए इसी टाइप की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, ओके। सो कीप ऑन स्टडिंग एंड टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड फॉर फर्दर टेस्टिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।